Hi students, my name is Neela Mehra and we are doing MCQs on real numbers chapter 1 for class 10th maths term 1 board exams, right? So we are following all the syllabus instructions or guidelines provided by CBSE for the term 1 board exam of 2021. So here are the multiple choice questions that we are doing. In our last video we have done questions till 15. We've done the summary of the chapter. I've given a summary of the chapter for you. 10 pointers are there. You can just go through those 10 pointers even starting these questions. If you have done already, well and good. Otherwise, please go through those 10 pointers. It will give you a quick handy pointers to keep with you, to keep in your mind before you start doing MCQs, right? So let's continue with our MCQs. We have question number 16 to 20 on board right now and we'll continue further in the video only. So let's do question number 16. So question number 16 says a rational number 13 by 3125, right? 13 upon 3125 rational number, it's a rational number, has these four options are given. You have to tell whether this rational number have a terminating decimal expansion, a non-terminating decimal expansion, or a non-terminating repeating decimal expansion, or a non-terminating non-repeating decimal expansion, right? So you can refer to my points or you must have done the concepts already. So we know चारों में से since it's a rational number, so non-terminating non-repeating तो पहले ही eliminate हो गया है, because non-terminating non-eliminating irrational numbers के केस में होता है. If a number is an irrational number, then the decimal expansion, its decimal expansion will have a non-terminating non-repeating decimal expansion. तो ये rational है तो D तो eliminate हो गया, बच्चे बाकी तीन terminating decimal expansion, non-terminating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion, right? So हमारे पास point number 9 है, हमारी थ्योरम है which says हम नीचे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3125 का. अगर 2 और 5 के टर्म्स में आएगा तो आपका टर्मिनेटिंग होगा और 2 5 की टर्म्स में नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट? सो आप 3125 डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए. 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा. 5 6 30, 12, 5 2 10, आपका 5 2 25, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10 and 25, 5 2 again 5, 5 5 1, right? So it comes 1 2 3 4 5 raised to power 5. So as we said, either 2 or 5 or both, but 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए तो terminating होगा. So in this case सिर्फ 5 है, so it will have a terminating decimal expansion, right? प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की 5 की टर्म्स में है या 2 की टर्म्स में होता या दोनों की टर्म्स में होता, हर केस में टर्मिनेटिंग होगा. इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड नंबर आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में डिनोमिनेटर के तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, ठीक है? सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज द आंसर फॉर 16. क्वेश्चन नंबर 17, 3.24636363. एज यू कैन सी 63 जो है वो रिपीट हो रहा है. सो विच काइंड ऑफ अ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज अब ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस. 63 63 63 3.24 63 63 63 63 63 चलता रहेगा. सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सी 824 के बाद 63 रिपीट हो रहा है, सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. सो वी नो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किस केस में होता है? रैशनल नंबर केस में. जैसे मैंने ऊपर बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो इरैशनल नंबर होता, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सो इट्स अ रैशनल नंबर, राइट? इरैशनल नंबर नहीं है. इंटीजर तो हमें दिख ही रहा है, इंटीजर नंबर इज अ काउंटिंग नंबर. negative 0 positive, all the counting numbers, whole numbers, not whole numbers, all the negative numbers as well, all the
फुल नंबर्स आर इंटीजर्स. तो इंटीजर तो नहीं है, इरेशनल भी नहीं है क्योंकि रिपीटिंग है, सो इट्स अ रैशनल नंबर सिंस इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, सो इट्स अ रैशनल. आप मेरे पॉइंटर्स देख लीजिए, इट विल बी मोर ईजियर. आई एम श्योर आपने अब तक कॉन्सेप्ट्स कर ही लिए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगेन जैसे फर्स्ट किया था, इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर्स के, और जिसका भी 2 या 5 या दोनों 2 5 की टर्म्स में आएगा उन सब का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, बाकियों का नहीं होगा. तो राइट, सबके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. दिस इज माय रफ एरिया. 50, 18, 21, 250. 50, 18, 21, 250. ठीक है, 50, 18, 21, 250 चारों डिनोमिनेटर्स के रैशनल नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे. 2 और 5 ही मिलना चाहिए तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. कर लेते हैं. 2, 25, 5, 5, 1 टर्मिनेटिंग, क्योंकि फैक्टर्स देखिए 2, 5, दैट्स ऑल, कोई थर्ड नहीं है, सो इट्स टर्मिनेटिंग. 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यार टर्मिनेटिंग पूछा है इसलिए मैं रॉन्ग कर रही हूँ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. 3 7 7 1 नॉन टर्मिनेटिंग. 2 1 2 5 2 6 सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा. 5 2 ज़ा 10 5 5 1 5 1. तो 2 5 5 5 अगेन टर्मिनेटिंग. सो फर्स्ट 50 है, 254 है. सो फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस वन फर्स्ट एंड फोर्थ है टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसके फैक्टर्स जो है 2 और 5 की टर्म्स में है. राइट, अब यही क्वेश्चन जो है 2 and 5 वाले जो कर रहे हैं, इसी को थ्योरम फॉर्म में पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 में. इफ़ p by q is a rational number where q is not equal to 0, fine, and HCF of pq is 1. When they say any common factor between them is only 1, that means those are prime numbers, right? That means p और q आपका अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, प्राइम नंबर में, इससे फर्दर वो डिवाइड नहीं हो सकते, तो उनका HCF 1 है. दैट मीन्स p by q, p और q दोनों प्राइम नंबर्स हैं. देन व्हाट विल बी द कंडीशन, नहीं दोनों प्राइम नंबर्स नहीं हैं, आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 which says if p by q is a rational number, ठीक है, p by q is a rational number where q is not equal to 0 and HCF of pq is 1. ठीक है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है. q 0 नहीं है, सो इट्स अ रैशनल नंबर p by q where HCF of p by q, HCF of pq, दैट मीन्स दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. दैट मीन्स दे आर को प्राइम नंबर्स, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. देन मतलब कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी कटना है वो कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में है. देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑन q so that the decimal form of this rational number is terminating. That's what was our 9 point. आपका जो थ्योरम 1.6 एंड 1.7 में है आपका NCERT की बुक में, सो वो यही है. रैशनल नंबर का अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि वो को प्राइम नंबर्स है, दोनों आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF 1 है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, उस केस में दैट रैशनल नंबर विल हैव इट डेसिमल terminating decimal expansion only when the prime factors of q, जैसे हमने यहाँ किया था, prime factors of q will have 2 and 5 or 2 or 5 in their denominator, right? जैसे आपका जो q के फैक्टर्स दिए हुए हैं 2 और 5 की फॉर्म में, 2 और 3 की फॉर्म में, 3 और 5 की फॉर्म में, नन ऑफ दी. सो वी नो 2 और 5 की फॉर्म. इस केस में ही टर्मिनेटिंग होगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, राइट, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दे आर पॉजिटिव. दे कैन बी 0 ऑल्सो. 2 0 होगा तो दैट मीन्स सिर्फ 5 है. इस केस में देखिए यहाँ पे
नहीं, इस केस में 2 5 2 5 दोनों हैं, पर कुछ केसेस में आप देखेंगे सिर्फ 2 होगा, उस केस में भी इट्स फाइन बिकॉज 5 का पावर 0 हम कंसिडर कर रहे हैं. दैट्स वाई वी सेइंग m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दे कैन बी 0 और दे कैन बी पॉजिटिव, बस नेगेटिव नहीं होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 19th 2m 5n. Question number 20, find the decimal expansion of 31 by 125. Good. So अभी आपको decimal expansion solve करना है. अभी तक हम पूछ रहे थे कि कौन सा decimal expansion होगा, terminating होगा, non terminating होगा. Solve करने हैं तो आप 31 by 125 का decimal expansion निकालना है. Divide नहीं करेंगे, अपने इसी p by q 2m 5n की फॉर्म में लेके आएंगे डिनोमिनेटर को. सो हम 125 के फैक्टर्स पहले निकाल लेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 विल गेट 5 5 2 10 5 5 5 5 1, दैट मीन्स 5 क्यूब, राइट. सो वी विल सॉल्व इट लाइक 31 by 125 को हम लिखेंगे 31 by 5 क्यूब, राइट. अब हमें नीचे डिनोमिनेटर हटाना है तो हमें 5 को 2 से तो इंटू करना ही पड़ेगा सेम पावर की. सो 2 क्यूब ऊपर 2 क्यूब नीचे, यू नो यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 2 and 5 ताकि हम इस फॉर्म में ले आए. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 क्यूब इज़ 8, 8 इंटू 31 इज़ 8 1 8 248 और 5 इंटू 10 इट विल बी 5 इंटू 2 पावर क्यूब, राइट, which is 248 upon 10 raised to power 10 cube 10 raised to power 3 which is 1000. So now you know अभी 248 में पॉइंट इधर है, 1000 हटेगा तो 1 2 3 zeros हटने के लिए 3 पॉइंट लेफ्ट में चला जाएगा 248 which is D 0.248, राइट. पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट वाइज पढ़ते हैं. 0.248. इसीलिए कुछ क्वेश्चंस में था कि यू नो जस्ट बाय लुकिंग एट आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर वी हैड टू टेल आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट. तो हमने सीधा इसको देखा था कि इसकी पावर 3 इसकी पावर 3 जिसकी मैक्सिमम पावर है दैट मीन्स 3, तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद एंड हो जाएगा. तो यहाँ देखिए 5 क्यूब था और 3 प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद एंड हो रहा है 0.248, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, 3 digits are there after the decimal, right. So this is the expansion of question number 20. I think it's clear. प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 5 क्यूब डाला, 5 क्यूब को नीचे 10 करने के लिए 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करना है सेम पावर्स के, तो ऊपर भी कर दिया. ऊपर 2 क्यूब इज़ 8, 8 इंटू 31 इज़ 248, नीचे 5 2 10 और क्यूब 1000. 3 जीरोज हटाने के लिए पॉइंट, नॉर्मली पॉइंट लास्ट में होता है, 3 जीरोज हटाने के लिए 3 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं. तो 0.248 D is the right answer, right. So these were 16 17 18 20th question. Let's do our 21st question. Okay, so question number 21 is, which of the following is a rational number, right. We have to tell out of A, B, C, D, which one is a rational number. So we know A root 2 is an irrational number because if we solve it, it's a non-terminating, non-repeating decimal, right? Keeps on going, on and on and on. So root 2 is like 1.1436, some. If you'll find out, it's established thing. It's a irrational number. It's a non-repeating and non-terminating decimal. Same way pi, though we say it equivalent to 22 upon 7, but it's not exact representation of it in a decimal, in a fraction thing, right. This is also a non-repeating, non-terminating decimal. If you convert pi into, you know, decimal thing, so it keeps on going 3.14, I don't even remember, but if you divide 22 by 7 you'll get to know it keeps on going. This so we can see here only it is नॉन टर्मिनेटिंग चलता जा रहा है और नॉन रिपीटिंग है बिकॉज देखिए यहाँ पे 0 1 हो रहा है, या 001 000, सो सेम चीज़ नहीं रिपीट हो रही. सो इट्स द नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. दिस इज इन अ स्टैंडर्ड P by Q form where my P and Q are integers and my Q is not equal to 0. So I satisfy the rational
numbers definition. Both are, this is in a fraction form where my numerator and denominator both are integers and my denominator is not equal to 0. So this is the rational number out of the 4. Then comes 22nd question number. What type of decimal form 51 by 1500 will have? Right? That means we have to convert the rational number 51 by 1500 into a decimal form, and they want to know whether it will be a terminating, non-terminating, repeating, non-terminating, non-repeating. None of these. Non-terminating, non-repeating तो नहीं होगा, क्योंकि non-terminating, non-repeating सिर्फ irrational number में होता है, and this is a rational number, right? So इन दोनों में से या फिर none of these. तो it's a rational number, तो ये फोर्थ भी चला गया, बिकॉज इन दोनों में से कोई एक तो होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, डिपेंडिंग ऑन मेरे डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स करेंगे वो 2 और 5 के टर्म्स में आते हैं तो टर्मिनेटिंग, कुछ और 2 और 5 के अलावा थर्ड फैक्टर भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट. 51 by 1500 22nd का 51 by 1500. अब फर्स्ट थिंग, जैसे ही हम डिनोमिनेटर का चेक करते हैं उससे पहले आपको p बाई क्यू को प्राइम की फॉर्म में आना है, यानी कि इसके जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो हटा देना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है टिल द पॉइंट वी कांट सिंप्लीफाई इट फर्दर, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना बचे, उसके बाद फिर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालते हैं. तो देखिए ये 3 से जाएगा, राइट. सो इसको आप यहीं पे काट लीजिए. 51 इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज आई सेड MCQ है, आपके स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर देना है. तो हम यहीं पे 3 से डिवाइड कर देते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 एंड 00, राइट. अभी 17 से करके देखते हैं अगर कटता है तो. 17 2 ज़ा 34 एंड 17 3 ज़ा 51, राइट. सो 3 ज़ा नहीं जाएगा, 2 ज़ा जाएगा 34 विच गिव्स में 16, दैट इज़ 160. एंड 160 17 के टेबल में नहीं आता है बिकॉज 170 आता है, राइट. तो फिर ये 17 टेबल में नहीं जाएगा, तो दैट मीन्स कोई कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं बचे हैं. अब हमें 500 का प्राइम फैक्टर करना है. 250, 125, 5 2 ज़ा 10 and 25, 5 5 5 1. सो 2 स्क्वायर 5 क्यूब, राइट. और 2 और 5 के फॉर्म में आ गए हैं, कुछ और थर्ड फैक्टर नहीं है, सो दैट मीन्स टर्मिनेटिंग. सो टर्मिनेटिंग, राइट. Factors only in 2 and 5 terms, so terminating. Then comes question 3rd. What type of decimal form, similarly है आपका point 9th जो summary में था, what type of decimal form will the number this show? Same way इसको भी कर लेंगे, पर उससे पहले इसके भी सारे factors, common factors हटा देते हैं, इसको co-prime बना देते हैं. उसके बाद 368 1050 2 से ही शुरू करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, राइट. अभी 2 से ये नहीं जाएगा, 2 से दोनों नहीं जाएंगे, ये जाएगा नहीं जाएगा. 5 से ये नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएंगे, 7 से नहीं जाएंगे, 11 से नहीं जाएंगे, 13 से 13 + 52 नहीं जाएगा, 17 से 17 2 ज़ा 34 एंड 51 एंड 15 नहीं जाएगा, 19 से 19 तो नहीं जाएगा. सो दिस कम्स टू 184 एंड 525. अब 525 के फैक्टर्स निकाल लेंगे. 525, 5 से जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 0 एंड 5, राइट. फिर से जा रहा है 2 1 3 7 7 1. So 5 square 3 into 7. As you can see, denominator have
denominator has factors 5, 3 and 7. That means other than 2 and 5 also there are factors of the denominator. That means non-terminating repeating. राइट सी ये दो ही ऑप्शन थे, इधर टर्मिनेटिंग बिकॉज ये रैशनल नंबर हमें दिख रहा है, वंस इट इज एस्टैब्लिश इट्स रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है तो ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं. ये जो सी है वो रैशनल नंबर के केस में अप्लाई नहीं होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन आई मीन इरैशनल नंबर के लिए होता है. राइट सो इरैशनल नंबर तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो रैशनल है, तो यानी कि इन दोनों में से ही कुछ है. अब इन दोनों में से कुछ कैसे पता चला? फैक्टर्स देख के. फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. फैक्टर्स पहले वाले में सिर्फ 2 और 5 थे यहाँ पे, तो फिर टर्मिनेटिंग था. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 24. इफ x इक्वल टू दिस, डेसिमल दिया हुआ है 0.56125, इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. राइट, दैट मीन्स ये जो दो क्वेश्चन थे इसमें हमें p/q की फॉर्म में दिया हुआ था और आपको डेसिमल की फॉर्म में करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना था. इस केस में आपको डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ है और बोला है अगर इसको हम दिस इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, अगर इसको p/q की फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, को प्राइम है, उनमें कोई फैक्टर और फर्दर नहीं बचे हैं, और q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n and 5 raised to power n. p/q का डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में है क्योंकि आपको दिख रहा है टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में होगा. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n and m. राइट, सी दिस इज अ टर्मिनेटिंग decimal form of a rational number. Now if it is a terminating decimal, that means इसको सॉल्व पॉइंट हटाएंगे तो जो डिनोमिनेटर आएगा वो 2 और 5 की फॉर्म में आएगा. सम पावर ऑफ 2 इंटू सम पावर ऑफ सम पावर ऑफ 2 एंड सम पावर ऑफ 5, से n पावर ऑफ 2 एंड m पावर ऑफ 5. राइट, और कोई थर्ड पावर नहीं होगा. सो ये n पावर और m पावर बताने कि कितने कितने पावर होंगे. 2 raised to power how much and 5 raised to power how much. This you have to tell the value of n and m. राइट, तो इसको सॉल्व करेंगे, नीचे देखेंगे 2 और 5 की कौन सी पावर्स आई है. राइट, सो विल मेक लिटिल स्पेस फॉर दिस थिंग फॉर डूइंग द सॉल्यूशन एंड देन विल डू इट. So we have 0.56125. इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएंगे और तब देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 की क्या पावर्स है. दोज विल बी द आंसर. राइट, सो 56125 इसको 1 2 3 4 5 डेसिमल को लास्ट में ले जाएंगे तो नीचे 5 प्लेस राइट शिफ्ट किया है तो 5 zeros आ जाएंगे. राइट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिकॉज द नंबर p एंड q शुड बी को प्राइम. इनके बीच में कोई फैक्टर्स नहीं बचने हैं तो जितना भी कट रहा है इसको काट लेते हैं. 1 2 3 4 5 5 6 1 2 5. राइट, 5 से काटेगा. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10. ठीक है, अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 and 25 5 4 ज़ा 20 0. Right, now again 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 45 5 9 ज़ा 5 8 ज़ा 0. सो 4 4 9 4 5 9 को फिर से देखते हैं किससे कटेगा. 4 4 8 16 17 नहीं, 3 से नहीं जाएगा. 7 से 7 6 42 29 नहीं जाएगा. 11 से 9 + 4 13 -4 नहीं, 11 से भी नहीं जाएगा. 13 से 13 2 ज़ा 26 13 3 ज़ा 39 और 59 52 होता है, नहीं जाएगा. 13 से नहीं गया. नाउ 17 से करके देखते हैं. 17 2 ज़ा 34 एंड 119. 17 7 ज़ा 119. ओके, नीचे वाला देखते हैं. 17
5 ज़ा 5, 17 5 ज़ा 85 नहीं, 17 4 ज़ा 17 4 ज़ा कितना होता है? अगर आपको टेबल याद है अच्छी बात है, पर अगर स्किप होता है तो फटाफट करके देख सकते हैं। 17 4 ज़ा 68, राइट। तो 68 से इधर 120 बचेगा। 17 नहीं जाएगा, 120 नहीं जाएगा। 17 7 ज़ा हमने देखा था 119 होता है, और हमें 17 68 के बाद 78 88 83 नहीं जाएगा, तो 17 से भी नहीं जाएगा, तो विल स्टॉप इट है। एंड 17 8 ज़ा 56 8 1 ज़ा 8 13 136 हमें यहाँ पे 120 था, तो 120 136 सो नहीं जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स आपका 449 अपॉन 800 आ गया, राइट। अब इसको 449 अपॉन 800 को 449 ऊपर एज इट इज रहेगा, 800 के फैक्टर्स बना लेते हैं, राइट। 800 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो बनाइए 240 220 200 250 225 5551, right? So 1 2 3 4 5 2 raised to power 5 into 5 square, right? and ऊपर 449, right? So इधर डिनोमिनेटर में आपके पास n और m आ गए हैं 5 and 2, 2 की पावर 5 है and 5 की पावर 2 है, so 5 and 2 C, right? Got it? Is it clear? पॉइंट हटा के नीचे ज़ीरोज़ ले लिया और जितना आपका डिवाइड हो सकता था वो डिवाइड कर दिया। फाइनली 449 अपॉन 800 आए, वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप 800 के फैक्टर्स कर लेंगे। 2 raised to power 5 एंड 5 raised to power 2 आ रहा है, सो मेरे n और m 5, दिस इज़ माई n, दिस इज़ माई m पावर्स, राइट, 5 and 2, so C is the answer for question number 24th, right? So now let's do question number 25th question. So now question 25th question, which of the following rational numbers is expressible as a terminating decimal, right? So these kind of questions are very important, so we can see, next few questions are on these lines only, that you have to tell them whether they are terminating, non-terminating, repeating. So these are very important, so we'll be practicing few questions on these lines only with different twist here and there. So here we have to tell them which of the following rational numbers is expressible as a terminating decimal, यानी कि जो A B C D है, इनमें से आपको बताना है इनमें से किसका डेसिमल फॉर्म जब होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, राइट। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल देखने के लिए हमें पता है, हमें डिनोमिनेटर को देखना होता है। 2 और 5 के फैक्टर्स में अगर आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कुछ भी एक भी कोई दूसरा फैक्टर होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सो इसमें हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखने हैं। बट वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर टू यू, जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट यू have to find the denominator's factor only after making it completely co-prime set of numbers. Numerator denominator जब co-prime हो जाएंगे, which means there will be no common factor left between them, between numerator and denominator, then we can say we can find out the factors of denominator. One thing, अब यहीं से सारा काट के जो लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा उसका फिर आप डिनोमिनेटर का निकालेंगे, तो आप डिनोमिनेटर का देख लेंगे, वन वे। द अदर ऑप्शन इज़ आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का निकालेंगे और फिर जो कैंसिल हो के जो बचेगा फिर चेक करेंगे कि वो 2 और 5 की फॉर्म में है कि नहीं है,
ठीक है। सो दो तरीके हैं। तो जो सिंपल दिखते हैं, हमें दिख रहा है कट रहा है या नहीं कट रहा, हमें दिख रहा है, वो तो हम यहीं पे कर लेंगे। पर हमें दिख रहा है बहुत बड़ा नंबर है, मैं इसको देखूँ 13 का टेबल लगाऊँ, 17 का लगाऊँ, 19 का लगाऊँ, 23 का लगाऊँ, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट। अगर मेरे को लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसके फैक्टर्स अलग से निकालूंगी, इसके फैक्टर्स अलग से निकालूंगी और कैंसिल कर दूँगी और मेरे को फाइनली आंसर मिल जाएगा, राइट। और इस पर एक ट्रिक और काम आएगी। आप आइडली तो आपको वैसे ही करना है, या तो आप पहले काटिए या सबके फैक्टर्स निकाल के काटिए। दूसरा एक ट्रिक इज़ देयर, देन वी हैव टू सी कि हमारे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिना ऊपर का सॉल्व करें हम पहले नीचे के फैक्टर्स निकालेंगे। अगर हमारे फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 में आते हैं, राइट, तो उस केस में वी विल से इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इवन इफ मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, स्टिल आई कैन से दैट बिकॉज आई नो अगर मेरा ये 2 और 5 की फॉर्म में है, अगर ऊपर कुछ भी आता है, अगर ऊपर 2 और 5 की फॉर्म में भी आता है तो कैंसिल हो जाएगा, स्टिल नीचे 1 रहेगा, जो कि मैं आराम से 2050 करके इसी टर्मिनेटिंग बन जाएगा, राइट। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम तभी आएगी, मुझे सोचने की या आगे सॉल्व करने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब मेरे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स आ रहे होंगे, राइट। सपोज मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 2 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3। नाउ आई नीड टू चेक कि जो ये एक्स्ट्रा 3 है, अब मैं सीधा नहीं बोलूँगी कि इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, मैं सीधा नहीं बोलूँगी। मेरे पास यहाँ पे आ गया है अगर 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। नाउ आई विल डू द फैक्टराइजेशन ऑफ न्यूमरेटर ऑल्सो टू see the possibility if there is any 3 in the numerator as well, which can be cancelled with the denominator, and my denominator left will be telling me that's a terminating decimal. समझ रहे हैं? अगर मेरे पास सिर्फ 2 और 5 आ रहा है डिनोमिनेटर में, सिर्फ 2 और 5 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तब मुझे न्यूमरेटर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो भी आ रहा होगा, अगर इवन इफ 2 और 5 भी आ रहा होगा, कैंसिल भी कर देगा तो नीचे इशू नहीं है, तभी वो टर्मिनेटिंग रहेगा, क्योंकि नीचे 1 आने पे भी आपका टर्मिनेटिंग होता है, बिकॉज 1 इज़ नथिंग बट 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर 0। गॉट इट? सो हम केवल डिनोमिनेटर निकालेंगे, 2 5 आ रहा है तो हम यहाँ टिक कर देंगे। लेकिन अगर 2 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है, देन आई विल चेक कि मेरा न्यूमरेटर भी फैक्टराइज हो रहा है फर्दर या प्राइम नंबर है। अगर वो फैक्टराइज हो रहा है तो विल क्विकली डू इट एंड देन विल सी व्हाट ऑल कैन बी कैंसल्ड अमंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो दैट आई गेट टू नो द फाइनल फैक्टराइजेशन, फाइनल फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, एंड देन आई विल सी वो टर्मिनेटिंग की टाइप फॉर्म में है कि नहीं है, राइट। सो 165, 30, 625, 462 इन सब का हम वो निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, राइट। और देखते हैं क्या होता है। तो निकालेंगे 165 का, 30 का, 625 का, सारे डिनोमिनेटर्स का निकाल रहे हैं, और 462 का, ठीक है। सी हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एज आई टोल्ड यू इट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो वी डोंट हैव टू गो थ्रू द डिटेल प्रॉपर मेथड। प्रॉपर मेथड में हमेशा ऊपर का भी निकालते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं, या फिर पहले कैंसिल होता है पहले कैंसिल करते हैं, राइट। पर इस केस में आपको ऊपर वाला हम अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रोसेस शॉर्टकट कर रहे हैं, ताकि हमें सिर्फ, क्योंकि हमें बताना सिर्फ ये है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, हमें पूरा प्रोसेस करके आंसर नहीं बताना है, राइट। सो हम सीधा डिनोमिनेटर्स का कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हमें 2 5 मिल रहा है या कुछ और भी मिल रहा है। जिसमें 2 5 के अलावा मिलेंगे फिर हम न्यूमरेटर चेक करेंगे उसका, ठीक है। सो 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 11 3, यहाँ पे और मिला है 2 15 3 5 5 1, यहाँ भी और मिला है 5 1 ज़ा 5 और 2 ज़ा 12, 5 ज़ा 25, सॉरी 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 1। गॉट इट? 2 1 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अभी 3 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा
3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 11 से जाएगा 7 7 1। अब जैसे आप फैक्टर्स देख सकते हैं 625 के 5 raised to power 4 में है, राइट। सो दैट मीन्स 5 raised to power इंटू 2 raised to power 0। यहाँ पे सब में 2 3 5 यानी कि 2 के अलावा है, 5 के अलावा है, 5 11 11 एक्स्ट्रा है, 2 3 11 7 3 11 7 एक्स्ट्रा है। सी नाउ प्लीज़ गेट माई पॉइंट वेरी नाइसली, वेरी क्लियरली। इन तीनों में अभी पॉसिबिलिटी है कि वो टर्मिनेटिंग होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज हमें एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिले हैं। अब हम उनके न्यूमरेटर्स को चेक करना चाहिए कि उसके फैक्टर्स निकाले और देखें कि क्या पता इसमें ऊपर कुछ 11 आ रहा हो, 11 11 कैंसिल हो जाए, नीचे 5 आ जाए, राइट। दिस ए पॉसिबिलिटी, बट सी वन थिंग वेरी क्लियरली, नोटिस इट दैट मेरा जो 625 वाला है, सी वाला है, उसमें 5 raised to power 4 आ गया है। दैट मीन्स ये जो है टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 5 raised to power 4 आ गया है, इंटू 2 raised to power 0 आ गया। अब ऊपर जो भी होगा वो चाहे कुछ भी हो, वो नया 5 और 2 के अलावा कोई नया फैक्टर इंड्यूस तो नहीं कर सकता ना ऊपर वाला। न्यूमरेटर में कुछ भी आए वो कुछ नया तो इंड्यूस नहीं कर सकता। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ऊपर भी 5 raised to power 4 हो, कट जाएगा, कोई बात नहीं, हम 5 raised to power 0 कर देंगे, राइट। एटलीस्ट थर्ड फैक्टर तो नहीं आ सकता। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। नाउ व्हेन आई नो माई 625 वाला इज टर्मिनेटिंग, getting it, when I know this is terminating, then why do I need to probe these further? I don't need to. I said possibility है, right, न्यूमरेटर सॉल्व करके, पर हम वो पॉसिबिलिटी तो एलिमिनेट हो गई ना, क्योंकि हमें पता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। एमसीक्यूज में हमें एक ही आंसर करेक्ट है और मेरा ये टर्मिनेटिंग हो गया है। दैट मीन्स ये ऑब्वियसली तीनों के तीनों आगे नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे जाके, बिकॉज आई हैव टू हैव वन करेक्ट आंसर ओनली। और एक तो मुझे फॉर श्योर पता चल गया है टर्मिनेटिंग है, सो वो ही है, बाकी को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। गॉट इट? सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 25। टर्मिनेटिंग है बिकॉज 5 और 2 के फॉर्म में है। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स विल द क्वेश्चन नंबर 26, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8 कम टू एन एंड। 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद कितने पॉइंट बाद ख़त्म होगा? सो 3/8 का अगर हम करें, आपस में कोई फैक्टर नहीं है, 8 का भी नो, 2 क्यूब, राइट। सो 2 और 5 के फैक्टर्स में 2 क्यूब बेसिकली मीन्स 2 क्यूब एंड 5 0, कुछ नहीं है, 1 है तो 5 raised to power 0। अब इन दोनों में 3 पावर बड़ा पावर है, दैट मीन्स 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद पॉइंट जो आपका एक्सपेंशन है वो स्टॉप हो जाएगा। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि 2 क्यूब है, राइट। 27th क्वेश्चन नाउ, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/8 इज, राइट। अभी 13/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखना है। 13/8 का डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम फैक्टर्स करेंगे। 13 के कोई फैक्टर्स नहीं होते, 13 से प्राइम नंबर, 8 के फैक्टर्स करेंगे 2 क्यूब, राइट। अभी इसको केवल डेसिमल पॉइंट देखना था तो हमारा यही ख़त्म हो गया, हमें 3 से पता चल गया। लेकिन अगर उसको पूरा डेसिमल सॉल्व करना है तो उसको हमें 5 के भी क्यूब लाना पड़ेगा, तभी नीचे सॉल्व हो पाएगा डेसिमल। 2 क्यूब है तो 5 क्यूब, अब 5 क्यूब सीधा तो नहीं ला सकते, सो विल मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब विच इज़ नथिंग बट 1 ओनली, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ वी कैन मल्टीप्लाई विद 5 क्यूब। सो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो 13 इंटू 5 क्यूब इज़ 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। आप सॉल्व कर लीजिएगा और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर क्यूब, राइट। 2 इंटू 5 क्यूब, दोनों सेम पावर है तो मल्टीप्लाई हो गए, सेम पावर हो गई है। तो दैट मीन्स नीचे आ गया 1000, नीचे आ गया 1000। 2 इंटू 5 इज़ 10 क्यूब, 10 क्यूब इज़ 1000 और ऊपर 13 इंटू 125 आप कर लीजिए।
13 5 ज़ा 65, 6 कैरी, 13 2 ज़ा, आप अपना कीजिए प्लीज़, 13 2 ज़ा 26 एंड 6 इज़ 32, 13 1 ज़ा 13 एंड 3 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, कुछ नया नहीं किया है। 16 25 1 और 3 ज़ीरो हटाने के लिए हमें पॉइंट, अभी जब कहीं नहीं है तो यहाँ है, 3 ज़ीरो हटाने के लिए पॉइंट लेफ्ट में जाता है 1 2 3, सो इट इज़ 1.625 1.625 इज़ द करेक्ट आंसर। गॉट इट? कुछ नहीं है, 13/8 था, 8 की फैक्टराइजेशन करें, देखा कि 2 क्यूब है तो हमें नीचे डेसिमल, अगर डेसिमल फॉर्म में लाना है तो नीचे 10 चाहिए या 10 की पावर्स चाहिए। सो 2 क्यूब है तो हमें 5 क्यूब चाहिए, और 5 क्यूब यहाँ लाना है तो 5 क्यूब ऊपर भी करना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व कर दिया, हमें मिल गया 1.625 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ कम्स 28, राइट? आई विल जस्ट मेक सम स्पेस फॉर डूइंग फर्दर रफ वर्क। आपके पास वहाँ पे बहुत रफ शीट्स होंगी, ध्यान से और नीटली रफ करिएगा, बिकॉज रफ अगर गड़बड़ हो जाए, रफ में आप कभी कभी क्या करते हैं, बहुत छोटे स्पेस में फटाफट वहीं पे किचबिच करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है कि कहीं ना कहीं कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, कोई पॉइंट गलत हो जाता है, हम मिस कर जाते हैं, कुछ लिखे कुछ 3 का 2 पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। इसलिए रफ वर्क भी आपको बहुत नीटली करने की ज़रूरत है, राइट? सो लेट्स डू इट। सो लेट्स डू 28. The smallest number by which root 27 should be multiplied, right? हमें एक ऐसा smallest number बताना है which should be multiplied by root 27 so as to get a rational number, right? We know root 27 is a irrational number, so इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो रैशनल बन जाए? ओके, देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, राइट? सो 27 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देख सकते हैं ये 3 इंटू 3 जो स्क्वायर है वो तो बाहर आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ नथिंग 3 स्क्वायर इंटू 3, राइट? अब जो 3 स्क्वायर, रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट 3, राइट? और रूट 3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो इन नॉन टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अभी तक ये इरेशनल ही है, बिकॉज ये जो है वो इरेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका जो आप डिवाइड करेंगे तो कोई एंड नहीं होता रूट 3 का, आप करते जाएंगे वो निकलता जाएगा, इट्स ए इरेशनल नंबर। तो अब इसको, और 3 रैशनल आ गया है, अब इसको छोटे से छोटा किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनल बन जाए? सो सी 3 इज रैशनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट 3 ही प्रॉब्लम है ना। तो रूट 3 का अगर रूट एक्सक्यूज मी, अगर रूट 3 को रूट 3 से करें तो फिर देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये वाला 3 यहाँ है, रूट 3 इंटू रूट 3 वी नो इज 3, इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है? So that means root 3 is the number with which if we multiply, we'll get the rational number. We can check with other options also. दिए क्या है, देखिए रूट 27 दिया हुआ है, रूट 27 को अगर रूट 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रू ये भी रैशनल नंबर बन जाएगा। रूट 27 टू रूट 27 इज 27, बट वी हैव बीन आस्क्ड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है? तो अभी ये रखते हैं, ठीक है, इससे भी हमें रैशनल नंबर मिल रहा है। 3 रूट 3 से कीजिए, 3 रूट 3 से कीजिए, तब भी 3 इंटू 3 9, और रूट 3 रूट 3 तब भी आपके पास 27 आ जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, ये भी करेक्ट है। रूट 3 से तो करके हो ही गया है, 3 से अगर करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो रैशनल नंबर नहीं बनेगा, बिकॉज 3 इंटू 3 9, रूट 3 ही रहेगा। सो दैट मीन्स ये तीनों आपके रैशनल नंबर बना रहे हैं। बट व्हेन वी हैव बीन आस्क्ड स्मॉलेस्ट नंबर, so among root 27, 3 root 3, obviously root 3 is the smallest number. That is why this is the correct answer, right? अगर इसमें smallest नहीं बोला होता, find the number which will make it a rational number by multiplying with it. So ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इन तीनों में smallest हमें दिख रहा है root 3 है, so root 3 is the answer, right? Now comes 29th. Which of the following rational numbers is expressible as a non-terminating repeating decimal? As it is, we know non-terminating repeating कब आता है? जब नीचे
2 और 5 के अलावा और कुछ भी फैक्टर्स होते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 2 और 5 के अलावा और फैक्टर्स भी है, और जिसके फैक्टर्स है 2 5 के अलावा वो हमें न्यूमरेटर के साथ भी देखना पड़ेगा, कुछ फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, राइट। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जिसमें 2 और सिर्फ 2 और 5 होंगे वो तो सीधा के सीधे रेशनल नंबर हो जाएंगे। जब वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दैट मीन्स किसी एक का 2 5 के अलावा फैक्टर्स आ रहे होंगे, बाकी तीनों के मतलब एनी 3 2 5 के फैक्टर्स आ रहे होंगे, यानी कि बाकी 3 टर्मिनेटिंग होंगे, सिर्फ एक होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट। बिकॉज रैशनल नंबर्स है सारे चारों, और रैशनल नंबर्स के 2 ही केस हो सकते हैं, ईदर योर टर्मिनेटिंग ईदर योर नॉन और योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब अगर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना है यानी कि बाकी 3 टर्मिनेटिंग होंगे, बाकी 3 2 और 5 की फॉर्म में होंगे, ठीक है। एक होगा जो 2 5 के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होंगे, फाइन। सो निकाल लीजिए डिनोमिनेटर 1250 250 1250 250 1800 625 1800 625, ठीक है। इन सब के फैक्टर्स डिनोमिनेटर्स के 1250 250 1800 सारे डिनोमिनेटर्स के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो 2 से शुरू करते हैं, 2 6 12 2 2 4 2 5 10 5 1 5 2 10 25 5 2 10 25, ये भी करते हैं नीचे 5 5 5 1 2 into 5 into 5 into 5 into 5, so it's a terminating। फर्स्ट वाला हट गया, टर्मिनेटिंग है, हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग चाहिए। सो ये टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 है। न्यूमरेटर में चाहे जो भी आए इट डजेंट मैटर, 2 5 होगा कैंसिल हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट नीचे कोई थर्ड फैक्टर नहीं है। सो ये फॉर श्योर टर्मिनेटिंग है, जो हमें नहीं चाहिए। 250 का देख लेते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 5 10 2 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 2 10 5 5 25 5 5 5 अगेन 2 into 5 into 5 into 5, ये भी 2 और 5 की ही फॉर्म में है सिर्फ, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट 2 आपके टर्मिनेटिंग आ गए हैं। थर्ड देखते हैं, 2 9 18 और 2 4 8 450 2 2 2 2 2 5 5 4 20 5 5 25 5 9 3 3 3 1 Now if you can see we have factors 2 into 2 into 2 2 है, 5 into 5 5 है, लेकिन there is another third factor of 3 into 3 3 स्क्वायर भी है, राइट। अब यहाँ पे हमें जनरली क्या होता है, 3 स्क्वायर है बट चांसेस है क्या पता ऊपर वाले के फैक्टर्स अगर हम निकालें कुछ, अगर निकले भी नहीं भी निकले, अगर निकले तो हो सकता है ऊपर कोई 3 स्क्वायर हो जो नीचे 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, हमारे पास 2 और 5 ही बचे, राइट। आई एग्री, ये चांसेस है, लेकिन आप ये देखिए इन दोनों के तो कोई चांसेस नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग होने के, क्योंकि नीचे 2 और 5 आ गया है, चाहे ऊपर कुछ भी हो टर्मिनेटिंग ही रहेंगे। तो ये दो तो टर्मिनेटिंग हो गए। इसको और चेक कर लेते हैं, अगर ये भी टर्मिनेटिंग है तो हमें इसको फर्दर प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, चांसेस तो उसके हो रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। केवल एक पॉसिबिलिटी है कि ऊपर 3 स्क्वायर हो, बट वो पॉसिबिलिटी भी एलिमिनेट हो जाती है जब हमें पता चल गया कि बाकी 3 फॉर श्योर टर्मिनेटिंग है। सो यही बचा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 625 हमें वैसे दिख ही रहा है, 625 से करेंगे 5 1 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 raised to power 4 again terminating. So my answer is C 3219 upon 1800, which has another factor 3. Got it? तो that itself confirms कि ऊपर 3 स्क्वायर से कुछ नहीं कट रहा होगा, एक 3 कट भी सकता है, एक 3 पक्का नीचे रहेगा, which will make it a non-terminating repeating decimal, right? Because ये तीनों for sure हमें मिल गए हैं terminating. So C. Now comes to D. ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ऐसा आए आप डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए।
Question 30, which of the following rational numbers have non-terminating repeating decimal expansion? Again the same. See, ये लोग बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं. That means they are, you know, really very important these type of questions. So you must practice all these so that वहाँ पे आए तो टाइम ना लगे हमें, right? और मार्क्स हमारी जेब में. Which of the following rational numbers have non-terminating repeating decimal expansion? Again नीचे के फैक्टर्स देखने हैं और उसमें देखना है 2 और 5 के अलावा कोई और फॉर्म है कि नहीं है. अगर सपोज 2 ऐसे मिल जाते हैं आपको जिसका नॉन टर्मिनेटिंग का चांसेस है, फिर हमें न्यूमरेटर सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किसके थर्ड फैक्टर कैंसिल हो रहा है और किसका रह रहा है. लेकिन अगर एक ही मिलता है, बाकी सब टर्मिनेटिंग श्योर हो जाते हैं, फिर हमें करने की ज़रूरत नहीं है. राइट, सो लेट्स डू इट. So let's do the 30th solution. Which of the following rational numbers have non-terminating repeating? Right? So सबके denominators के factors check करते हैं. सबसे पहले 2125, 512, 200 और इसमें जो तीसरा है 200 यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है. ठीक है, और तीसरा नन ऑफ दीज है. क्या पता किसी का भी नॉन टर्मिनेटिंग ना हो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 4s are 20, 5 2s are and 5 5s are. Right, 5 4s are 20, 12, 5 2s are 10, 25. 5 8s are 40, 25, 5 5s are 25. 5 1s are 5, 35, 7s are 17, 1s are. देखते हैं 17 फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें ऊपर ऊपर न्यूमरेटर आपका 31 है विच इज़ अ प्राइम नंबर, उसको फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स नीचे 17 है, हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पहले में ही आंसर मिल गया. गेटिंग इट? दिस इज़ द चार्म एंड दिस इज़ द फन ऑफ MCQs. दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ MCQs. आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब आएगा? जब से 5 और 2 के अलावा कोई फैक्टर्स होंगे. हमने पहला किया, हमें 17 मिल गया और हम ऊपर देख रहे हैं प्राइम नंबर्स है. 31 इज़ अ प्राइम नंबर, इट कैन बी मल्टीप्लाइड, इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ एनीथिंग. ये किसी इसके फैक्टर्स निकालेंगे 31 के तो किसी से नहीं जाएगा. राइट, सो 31 अपॉन 5 क्यूब इंटू 17 इज ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, अगर आगे जाना होता तो हम 512 और 200 निकाल लेते, पर वाई टू डू दैट, वी नो आंसर 31/2.25. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 31. 19.123456 बार, which means 19.123456, this is the repeating part of the decimal. This will keep repeating 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and it's a non-terminating decimal. So we have to tell them it's a rational number or it's an irrational number or it's a composite number or it's a prime number. See, prime और composite तो आपको सीधा दिख रहा है. हमेशा prime और composite जो होते हैं वो whole numbers होते हैं, complete numbers होते हैं. So prime composite तो है ही नहीं, decimal में है तो whole number तो है ही नहीं. बची irrational, वो हम पढ़ ही रहे होते टाइम से कि जो भी terminating होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसलिए रैशनल नंबर है. ठीक है, इरैशनल नंबर सिर्फ एक केस में होता है, जब नॉन टर्मिनेटिंग हो. ठीक है, चलता जा रहा हो, पर नॉन रिपीटिंग हो, बार नहीं हो सकता. उसमें कुछ भी नए नंबर हर आते रहेंगे. वी कांट प्रिडिक्ट विच नंबर्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड. सो इट्स अ रैशनल नंबर सिंस इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. राइट, so with this we are done with 31 questions. We'll do few more questions. Let's do them. So this is question 32. It says if HCF of 65 and 117, right, two numbers are given 65 and 117, if their HCF is expressible in the form 65m minus 117, right, the saying the HCF of these two terms 65 and 117 can be expressed in this expression also, in this form also. If that's possible, then value of m
is which of these, right? So HCF in this form, and since numbers are there, we can directly find the HCF as well, right? And we'll then put it here equal to, and then we'll get the value of M. Easy. So let's find the value, the HCF of 65 and 117. 65 and 117, right? So we'll start with 5 ones are 5 and 3s are 15 and 13. As you can see, 65 has come 5 into 13. 117, 3 3s are 9, 27, 3 9s are 27, 3 again 13 and 13. So 117 is 3 square into 13. So from this you can see HCF is common, right? 5 is not in both, 3 is not in both, only 13 is in both the things, both the terms. So my HCF has come 13. Now I can make this equivalent. 65M minus 117 also they're saying is basically HCF only expressed in this form, and our HCF is 13, so we can always say 65M minus 117, 65M minus 117 is equal to 13, right? They're saying this HCF of these two terms are expressible in this form, so we can always write this. This will give me 13 plus 117 upon 65, and if you add this 117, it's 130 upon 65, right? So let's do it. 5 ones are 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 6 are 13 ones are, and 13 2s are. So M comes to be 2. So my B is right. We've not done anything. दोनों का LCM HCF निकाल दिया है, इक्वल टू 6M माइनस 117 किया है, M की वैल्यू आ गई है 2, right? The next question 33 is the largest number which divides 70 and 125, right? The largest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively, is one of these, right? So when I say largest number which divides these two, that means we're talking about HCF, right? As I've told you, HCF divides the number and LCM is the multiple of numbers, given numbers. So here we are talking of HCF, the largest number. HCF is highest common factor, which divides these. That means it must be the factor of these three, but with the one condition, that leaving remainders 5 and 8. Getting it? That means suppose that HCF is X. So they are saying कि X 70 को भी divide करेगा और 125 को भी divide करेगा. This will be the largest number, but it will leave remainder 5 and 8 respectively. यानी कि जब ये X 70 को divide करेगा तो X 8 remainder छोड़ेगा और 120 will leave remainder 5 and 8, 5 remainder छोड़ेगा और 125 को करेगा तो 8 remainder छोड़ेगा, right? So now just try to understand it. यानी कि ये X जब 70 को divide करेगा तो 5 remainder छोड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ 65 आएगा, right? तो 5 remainder तभी बचेगा. That means 65 is the multiple of X. 65 exactly divide हो जाएगा. अगर 65 से divide करेंगे तो 0 remainder आएगा. Since 5 ज़्यादा है इसलिए 5 remainder आ गया. Similarly यहाँ पे 125 से divide होके 8 आ रहा है. That means X के टेबल में क्या हो रहा होगा? 125 minus 8, right? 125 minus 8 which is 117. So 117 से X को divide करेंगे तो exactly जाएगा, क्योंकि ऐसे 8 ज़्यादा है इसलिए 8 remainder पहुँच रहा है, right? That means 65 और 117 को X बिल्कुल perfectly divide करेगा remainder 0 के साथ. तो which means 65 और 117 का जो HCF है वो X है. Getting it?
और फिर उसमें हम 5 और 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। 70 और 125 का HCF निकाल लेंगे और उसमें बोला है कि रिमाइंडर 5 और 8 है, राइट। सो यहाँ पे 65 एंड 117, इसका HCF आपको पता है करके। एंड कोइंसिडेंटली हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने 65 एंड 117 का ही निकाला है, तो आप दोबारा ऐसे ही कर लीजिए, मैं बोर्ड पे दोबारा नहीं कर रही हूँ। सेम वे 65 का निकालेंगे तो 5 × 13 आएगा फैक्टर्स, एंड 117 का निकालेंगे तो 3 स्क्वायर × 13 आएगा। सो HCF इज़ 13 इन दोनों का, राइट। दैट मीन्स 13 से हम जब डिवाइड कर रहे हैं 65 को तो एग्जैक्टली आ रहा है, राइट, और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आ रहा है। दैट मीन्स मेरा जो नंबर है, अब 70 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 5 रिमाइंडर आ जाएगा, और 13 को 125 से करेंगे तो 8 आ गया। तो मेरा जो नंबर है वो 8 है, सॉरी 13 है, सॉरी यहाँ पे सॉल्व किया है, 13 है। गेटिंग इट? हमने 13 कैसे निकाला? हमने 70 और 125 का HCF नहीं निकाला क्योंकि हमें बोला था उससे परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर्स छोड़ते हैं। तो जितने रिमाइंडर्स छोड़ेंगे वो हटा देंगे। 70 में से 5 हटा दिया, 125 में से 18 हटा दिया, हमें 65 117 मिला बचा, वो परफेक्टली डिवाइड होंगे, उनका HCF निकाल देंगे, दैट विल बी 13। सो दैट इज़ माई आंसर, करेक्ट। बिकॉज HCF जब डिवाइड करता है तो परफेक्टली डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 होता है, और अगर उसके आगे पीछे कोई नंबर है तो जितना फ़र्क है वो आप उसमें वापस मतलब माइनस कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। सो दिस इज दिस 70 - 5 125 - 8 HCF निकाला, 13 आ गया। 34, क्वेश्चन नंबर 34। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a = x³ y², right, a is x³ y² and b is xy³, x and y are prime numbers, fine. Then HCF of AB, HCF देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर, x³ y² और xy³ में कॉमन क्या है? x देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो x इज एटलीस्ट एट बोथ द प्लेसेस, सो x आ गया HCF में, और y में y³ एंड y², सो y² आ गया, y² इज एट बोथ द प्लेसेस, सो मेरा HCF आ गया xy² विच इज हियर। क्लियर है? कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, बेसिकली x³ और x, दैट मीन्स एटलीस्ट सिंगल x इज एट बोथ द प्लेसेस, सो x, y³ एंड y², so at least y² is at both the places, y², so this is my HCF, right. That's question number 34. Then comes question 35. Find the smallest number which when increased by 17, similar वाला है जो अभी किया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, बस इसमें लार्जेस्ट था तो हम HCF की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली LCM की बात करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, एक ऐसा नंबर बताइए जिसको 17 ऐड करेंगे उसमें तो इट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। गेटिंग इट? खुद वो जो नंबर है वो खुद एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है इन दोनों से, यानी कि इन दोनों का LCM नहीं है, उसमें जब 17 ऐड करेंगे वो इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है और स्मॉलेस्ट नंबर है, दैट मीन्स इन दोनों का LCM है, राइट। तो हमें वो नंबर निकालना है जिसमें 17 ऐड का केस का, तो हम स्ट्रैक बैक करेंगे, हम इन दोनों का LCM निकालेंगे, उसमें 17 माइनस कर देंगे, विल गेट आवर आंसर, राइट, क्योंकि वो उसमें फिर 17 प्लस करके वापस LCM में पहुंच जाएंगे। इट्स एज ईजी, इजंट इट? लेट्स मेक सम स्पेस फॉर अ कैलकुलेशन एंड देन विल डू क्वेश्चन द कैलकुलेशन आई जस्ट शोड यू। ओके, सो नाउ 35 का सोल्यूशन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, दैट मीन्स अगर वो नंबर x है तो x में 17 ऐड करेंगे तो इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468, राइट, ठीक है। सो इन दोनों का LCM ये पूरा होगा, उसमें से 17 माइनस कर देंगे तो विल गेट x। सो LCM निकाल लीजिए 520 एंड 468 का। 520 का निकाल लेते हैं, 2 2s are 4, 2 6 are 12 and 0, 2 1s are 30, 2 6 are 12 and 5,
5 ones are 5, 5 threes are 15 and 13. Right, 2 cube 5 है 13. ऐसी 468 का निकाल लेते हैं. 2 3 4 1 1 7 3 3s are 9, 3 9s are 27, 13 1. So 520 का हो गया है 2 cube into 5 into 13 and 468 का हो गया है 2 square into 3 square into 13. So LCM क्या आ जाएगा आपका? LCM देख रहे हैं, हायर पावर होती है 2 cube is there, 2 square is there, so LCM will be 2 cube. Just mind it, HCF होता तो 2 square होता, smaller power. LCM है तो 2 cube into 5 एक ही जगह है 5 1, 3 square है 3 है ही नहीं तो 3 square and 13 का 1 पावर. राइट, इसको सॉल्व कर लीजिए तो LCM कितना आ जाएगा आपका? LCM is 2 cube is 8, 8 5s are 40 into 3 3s are 9, 940 इधर 360 कर दीजिए सीधा. देखिए 2 cube 8, 8 5s are 40, 40 9s are 4 9s are 360, 40 360 into 13. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 13 0 0, 13 6 are 78, 7, 13 3s are 39 and 46. 4680 is not the answer. 4680 is the LCM. पर LCM आया कैसे था वो नंबर? 17 ऐड करके. हमें बोला है जो उससे 17 छोटा है. राइट, हमें दूसरा नंबर निकालना है जो उससे 17 छोटा है. तो राइट, इसमें से 17 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4663 सॉरी 4663 is my number. 4663. Getting it? 4663 में 17 ऐड करेंगे 4680 हो जाएगा जो परफेक्टली डिविजिबल होगा इन दोनों से, जैसा वो कह रहे थे. सो B 4663. Now comes question number 36. The HCF of two numbers is 27 and their LCM is 162. HCF given है, LCM given है. If one of the numbers also given, find the other number. Remember the formula I've told you for HCF LCM. We know LCM into HCF is product of the numbers, right? जिनके HCF LCM है उनका product. So find 27 162 into 27 equal to 54 is one of the number. Find the other number. So 54, let the other number be x. So x will be 162 into 27 upon 54. So 27 1, 27 2, सीधा डबल दिख रहा है and 2 से इधर करेंगे तो 2 8 जा 16 and 2 1. So other number is 81, which is C. Right? Formula easy है. LCM into HCF is equal to, means LCM of xy into HCF of xy is equal to x into y. Product of those number whose HCF and LCM are there. ठीक है. So LCM की वैल्यू डाली, HCF की डाली, एक नंबर की डाली, x आराम से आ जाएगा 81 है. Excuse me. Now comes question 37. Find the least positive number divisible by, whenever we say least number, it is LCM only, divisible by some number. While when we talk about largest number, highest number, which divides, HCF divides and LCM gets divided by. So find the least positive number divisible by 20 and 24. Right? So that means we have to find its LCM. See, they're not directly saying HCF and LCM, and that's the trick in the question. If you have understood the concept of HCF and LCM, which I too have tried explaining you in the summary of where we started a multiple choice question in the video. Otherwise also you can go through the concept. If you have understood the HCF and LCM concept, it will be very easy for you to do all this question where it's very small trick is there. It's not actually a complicated trick also.
and I'm giving you hints also how to understand. If you have some confusion whether you have to calculate HCF or LCM, then whenever least is mentioned, it's LCM most probably, though you have to carefully read the question. And whenever highest or largest number is talked about, it's HCF. So least positive number divisible by 20 and 24. So I have to find the LCM of 20 and 24. Very easy. 20 का निकालिए, 2 10s are 20, 2 5 5 1. So 2 square into 5. 20 का. 24 का निकालिए, 2 12, 2 6, 2 3 3 1. So 2 cube into 3. 20 का है 2 square into 5 और उसका है 2 cube into 3. तो आपको LCM निकालना है. सो 2 की हायर पार्ट 2 क्यूब और 5 और 3 एक बार, ठीक है, 5 और 3, राइट. सो 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 3 120. सो 120 इज द आंसर. कुछ नहीं है, दोनों का LCM निकालना है. फैक्टर्स निकाल लिए, कॉमन निकाल लिया. Now if the HCF of 150 and 100 is 50, if the HCF of 150 and 100 is 50, HCF दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए है, LCM निकालना है इन दोनों का, ठीक है. तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या अपने फॉर्मूले से निकाल लीजिए. जो हमने था LCM HCF प्रोडक्ट, HCF दिया है, प्रोडक्ट दिया है, LCM निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा. लेट्स डू इट. Right, if the HCF of 150 and 100 is 50, so my HCF into LCM, HCF into LCM or LCM into HCF is one and the same thing, product of numbers, right. So HCF this saying 50, LCM we have to find out. LCM into 50 equal to numbers are 150 and 100. So 150 into 100. So my LCM is nothing but 15,000 upon 50. 300. C, right? क्लियर है? फॉर्मूला पता है तो अपने आप सॉल्व कर लेंगे. HCF into LCM equal to product of numbers. सब चीज़ डाल दीजिए, LCM आ गया 300. So C is the answer for question 38, right? So let's do further questions. So question number 39 and 40 we have. Question number 39 says, if 241 upon 4000, a rational number is given, 241 upon 4000 is equal to 241 upon 2 raised to power m and 5 raised to power n. That means 4000 का prime factorization दिया हुआ है without disclosing the powers of 2 and 5. That's what we have to find in the question. Find the value of m plus n, right? m और n नहीं दिया हुआ और ये बता दिया कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 की टर्म्स में ही आएंगे. m और m हमको डिस्क्लोज नहीं किया है, सो वी हैव टू फाइंड इट आउट. एंड उसका सम हमें गेस करना है, इधर इट्स 5 और 3 और 8 और 10, राइट. तो सिंपल है, 4000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, पावर्स मिल जाएंगे 2 और 5 के, उनको ऐड कर देंगे, विल फाइंड द राइट आंसर, राइट. लेट्स डू इट. 4000 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपका रफ वर्क हम यहाँ कर लेते हैं, राइट. 4000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे टू 2000 टू 1000, राइट. 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 5 10, again 2 2 1s are 2, 2 2 4 and 5. Now no more 2s, now comes 5, 3 से नहीं जाएगा. 5 2s are 10 and 5 5s are 25, 5 5s are 5 1s, right. So we can see 2 के 1 2 3 4 5, 5 2s है and 3 5s है. Getting it? 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5 is there and
5 raised to power 3 is there, right? So 2 की power 5, 5 की power 3, यानी कि मेरे m हो गया है, my m is 5 and n is 3. So 5 plus m plus n would be 8, which is this. Clear? M plus n is 8. 39 का answer is 8. Clear? Question number 40. The exponent of 2, that means the power of 2 in the prime factorization of 144 is, prime factorization करना है 144 का power दिखा देंगे, 2 कितनी है, we'll find it out. 144 का कर लीजिए prime factorization, आप अपनी कॉपी में कीजिए, no need to see it at the first place, do it on your own and then check your answer with mine. 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 18, 2 9s are 3 3s are. So 144 के फैक्टर्स आ गए हैं 2 raised to power 4 into 3 raised to power 6. ठीक है, 1 2 3 4, 2 raised to power 4 and 3 raised to power 2. So यहाँ पे 3 का नहीं पूछा, हमसे बस पूछा कि 2 की कितनी पावर होगी, which is 4. D. Right? D is the correct answer for question number 40. And with this, we've completed 50 MCQs of real numbers, but we'll not stop here. We'll continue some more questions, but in the next video, the third video, part 3 of MCQs, where we'll be doing few more such direct MCQs, small MCQs, and we'll also be doing case-based MCQs and assertion and reasoning-based MCQs, because those are also type of videos, those are also type of questions which will come in your exam, you know. And for these, as I've told you, these are the these questions we've taken from a book called 100% Exam Ready by MTG Media Learning Private Limited, right? So this book is easily available. Either you can take that book, or I'm putting all the questions that we are doing in the description box also. You can take the questions from there, and I'll give the solution, give the answers also, correct answer. You can do it on your own, check your answers and evaluate yourself, give yourself marks. And wherever you stuck, wherever you get a wrong answer, do refer to my solutions, right? So we'll be doing all the questions together. So bye for now. See you in the next video, part 3 video, with further questions on real numbers and other videos as well on the MCQs for other chapters, right? So bye, keep practicing and stay healthy, eat healthy, sleep well. Bye. See you in the next video. Bye bye.